So we have discussed some basic topics of stream erosion and transportation. And the main thing in stream erosion or transportation is actually the work of a stream, how an stream, how a stream is working, and what actually it does. So the work of a stream is called as excuse me, hydraulic action. And due to hydraulic action, the rocks are grinded and the rocks are carved. So uh, that grinding and carving is taking place due to the action of flowing water. So that carving and grinding is called as abrasion. So when that abrasion takes place, of course, the rocks are broken down. And when the rocks are broken down, the rocks get सस्पेंडेड इनटू द वाटर, फिर वो टूटे हुए रॉक्स पानी में शामिल हो जाते हैं. So when those broken rocks or the broken material are dissolved in the water, it has three general forms. So let's see what are those forms. Okay, here in this picture they are showing a river, picture A. This is a river flowing in steep area, and this one is flowing in a plain area. So the nature is different. Here you see the water is full of froth, and yeah, झाग जैसी formation है क्योंकि speed बहुत ज़्यादा है पानी की. And here the water is very calm, बिल्कुल आहिस्ता हल्का flow कर रहा है. So ये slope का difference है. ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट एब्रेशन के जब एब्रेशन होता है तो रॉक्स टूटती हैं और रॉक्स टूटकर पानी में शामिल होती हैं. तो व्हेन दे आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द डिसॉल्व्ड इनटू द वाटर, तो उसके तीन फॉर्म्स होते हैं. लाइक या तो पार्टिकल्स छोटे होंगे या मीडियम साइज़ के या बड़े साइज़ के पार्टिकल्स. सो दैट सस्पेंडेड रॉक्स, rock particle which which are carried along the river are called as river load. Okay, जो एब्रेशन हुआ, हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से एब्रेशन हुआ, फिर एब्रेशन की वजह से रॉक्स टूटी और पानी में शामिल हो गई. तो जब वो पानी में शामिल हुई तो वो कहलाई लोड ऑफ अ रिवर या लोड ऑफ अ स्ट्रीम या स्ट्रीम लोड, रिवर लोड, because the flowing stream is carrying all those things along with it to different areas. So there are three types of load you see here. First one is a dissolved load, then suspended load, and we have the bed load. Okay, so this is type 1 of load, the dissolved load, and of course, these are the rocks which have very small grain size. Dissolved load का grain size बिल्कुल छोटा होगा, like which has dissolved into the water. And then we have suspended load, the second category of load. The suspended load has slightly bigger sized particles. ये वो लोड होता है जो जनरली नज़र आता है. डिसॉल्व लोड फील नहीं होता until and unless if it's very much. जब बहुत ज़्यादा हो तो डिसॉल्व लोड की वजह से स्ट्रीम का ओवरऑल
कलर चेंज होता है, लेकिन वो लोड, यानी लोड क्या है, रॉक पार्टिकल्स हैं, टूटे हुए रॉक पार्टिकल्स, दोज आर नॉट फेल्ट, द डिजॉल्व वन, बट जो सस्पेंडेड होते हैं वो आप फील कर सकते हैं। आप अगर पानी की धार में अपना हाथ डालते हैं तो यू वुड फील द टाइनी लिटिल ग्रेन्स। सो ये सस्पेंडेड लोड है। देन द थर्ड type of load is the bed load. Here it is. So these are the rock particles which are slightly greater in size, bigger in size. So यहाँ पर illustration है fluvial transport की. Of course, what it is transporting? It is transporting the load. और load हमारे पास तीन types के हैं. Here, solution load. Yeah, solution load or the dissolved load here. बहुत छोटे पार्टिकल्स, एंड देन द सस्पेंडेड लोड, ये जो पार्टिकल्स छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, एंड दीज आर द बेड लोड्स, ये पत्थर और जो थोड़े बड़े साइज़ के हैं और रिवर बेड के अलॉन्ग ये फ्लो कर रहे हैं. सो दिस इज़ द बेड लोड. सस्पेंडेड लोड एंड डिजॉल्व्ड लोड, these both are mixed up in the water and can be found anywhere in the stream. डिजॉल्व लोड और सस्पेंडेड लोड स्ट्रीम में कहीं पर भी ये मिल जाएंगे, लेकिन जो बेड लोड होता है वो रिवर बेड के साथ ही मिलता है जनरली. लाइक दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज बेड लोड, द लोड विच फ्लोज अलोंग द बेड ऑफ द रिवर. रिवर बेड कहते हैं दरिया की तह को, सबसे नीचे वाला पॉइंट. सो दैट इज बेड एंड द बेड लोड. ओके, नाउ every stream or a river has some capacity of carrying load. ज़ाहिर है एक हद होगी जितना एक हद तक ही वो लोड कैरी कर सकेगा, और उसके बाद अ, वो लोड डंप आउट करेगा. सो फॉर दिस कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रीम, देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज, competence and capacity. So competence is the ability of a stream to move particles of a specific size, कि एक स्ट्रीम है वो कितने बड़े साइज, कितने बड़े पार्टिकल तक को अपने साथ मूव करवा सकती है, अपने साथ ट्रांसपोर्ट करवा सकती है. वेदर इट्स हैंड साइज स्टोन या उससे बड़े स्टोन को भी कैरी कर लेता है, तो ये जनरली उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है. और स्पीड और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, यस, कि लगातार वो स्ट्रीम बह रही है और तेज़ स्पीड में, तो फिर उसकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है, एंड दैट स्ट्रीम कैन कैरी बिगर लोड, वो बड़े पार्टिकल को भी अपने साथ ट्रांसपोर्ट कर लेगी. एंड सिमिलरली अगर कोई स्ट्रीम है जो स्लो स्पीड में मूव कर रही है तो उसकी कॉन्फिडेंस कम हो जाती है, एंड इट कैन कैरी स्मॉलर स्मॉलर लोड. सो साइज़ के अकॉर्डिंग, कितने साइज़ के पार्टिकल को कोई रिवर मूव करवाए, वो उसका कॉम्पिटेंस है. और कॉम्पिटेंस डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द रिवर, ऑफ द स्ट्रीम. देन सेकंड थिंग इज कैपेसिटी. सो कैपेसिटी इज द टोटल लोड अ रिवर कैन ट्रांसपोर्ट. अब उस लोड के अंदर सस्पेंडेड लोड भी हो सकता है, डिजॉल्व लोड भी हो सकता है, बेड लोड भी हो सकता है. ओवरऑल जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटी. और कॉम्पिटेंस क्या है, वो कितने मैक्सिमम कितने साइज के पार्टिकल को मूव करवा सकता है. एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज. ओके, सो डिज़ॉल्व लोड, जो तीन टाइप के लोड हमने पढ़े हैं, इनकी मूवमेंट को स्पेशल टर्मिनोलॉजी दी जाती है. लाइक व्हेन डिज़ॉल्व लोड is in a stream, then it will be called as solution. And when the suspended
load is in a stream, then it will be called as suspension. I wonder the word suspension is okay. Suspended load जब दरिया में शामिल हो किसी भी stream में तो it will be called as suspension. And the bed load, inclusion of bed load and the movement of bed load, क्योंकि यहाँ हम इन सारी सब लोड्स की बात क्यों कर रहे हैं, ये लोड ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑफ कोर्स मूवमेंट है, सो सॉल्यूशन मूवमेंट, सस्पेंशन मूवमेंट और बेड लोड की मूवमेंट दो तरह की होती हैं. फर्स्ट इज ट्रैक्शन and second is saltation. Okay, traction and saltation is the movement for bed load. अब traction और saltation में क्या फ़र्क है? Traction happens when the particles are dragged along the river bed. जब river bed के along particles drag हों, से सीधे सीधे रोल करते हुए मूव हों, so that movement is called as traction. एंड व्हेन इट बाउंसेस अप एंड डाउन के एक रिवर बेड के पॉइंट को हिट किया, फिर वो पार्टिकल ज़रा सा जंप कर जाता है और फिर वो मूव कर रहा है, सो दैट इज़ सॉल्टेशन प्रोसेस. So when it is rolling along the river bed, it's traction. Here the term is written, if you can see. And then we have सॉल्टेशन, जो उछल कूद के साथ पार्टिकल बेड के अलोंग ही होते हैं लेकिन ज़रा सा वो बेड से ऊपर होते हैं, फिर टकराते हैं, फिर ऊपर होते हैं, तो सॉल्टेशन इज़ हैपनिंग टू द पार्टिकल्स विच आर स्लाइटली स्मॉलर. तो ये बिगर स्टोन जो है, इस स्टोन के अंदर ट्रैक्शन मूवमेंट होगी, और ये जो थोड़े स्मॉलर साइज़ का है, इट विल हैव सॉल्टेशन, सॉल्टेशन टाइप ऑफ मूवमेंट. ठीक है, तो सॉल्यूशन लोड का नाम या लोड की मूवमेंट, उसकी 4 कैटेगरीज़ हमने देखी. डिसॉल्व लोड के लिए टर्म यूज़ की जाती है सॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट. सस्पेंडेड लोड के लिए टर्म यूज़ की जाती है सस्पेंशन ट्रांसपोर्ट. एंड बेड लोड के लिए 2 टर्मिनोलॉजी हैं, ट्रैक्शन ट्रांसपोर्ट एंड सॉल्टेशन ट्रांसपोर्ट. सो दीज़ वर अबाउट द लोड एंड स्ट्रीम इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट के. पहले उसने इरोड किया यानी रिमूव किया, फिर उसने ट्रांसपोर्ट किया. ट्रांसपोर्ट जब करता है तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लोड, और फिर उन लोड की मूवमेंट है. ऑलराइट, एंड देयर इज अ वर्ड aggradation. So this is also included in the stream action, in what was that word for the work done by the river? It was hydraulic action. So during hydraulic action, um, aggradation also happens and degradation also happens. Degradation कहते हैं किसी चीज़ का ख़त्म होना, और aggradation कहते हैं उसका ऑपोजिट, किसी चीज़ का बनना. लाइक अगर हम रिवर के लोड के हिसाब से बात करें तो डिग्रेडेशन कब होगी? जब लोड रिमूव हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा. एग्रीडेशन कब होगी? जब लोड सिट कर जाएगा, बैठ जाएगा, या कहीं पे एक्यूमुलेट हो जाएगा. सो दैट इज़ डिग्रेडेशन एंड एग्रीडेशन. एंड डिग्रेडेशन कब हो रही है? जब तक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, वो डिफरेंट जगहों से पार्टिकल्स दरिया में शामिल हो रहे हैं स्ट्रीम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, कि वो कितना लोड कैरी कर सकता है. सो वो डिग्रेडेशन है जब तक मूवमेंट है. लेकिन जब मूवमेंट रुक जाती है, लाइक व्हेन इट रीचेस इट्स कैपेसिटी, स्ट्रीम कैपेसिटी जब फिल अप हो जाती है कि वो उससे ज़्यादा लोड नहीं उठा सकती, तो फिर क्या होता है? सेडिमेंट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं. तो सेडिमेंट्स का जमा होना या बेड किसी भी टाइप के लोड का सेटल हो जाना कहलाता है एग्रेडेशन. So due to aggradation, braided stream is formed.
ब्रेड कहते हैं चोटी को, चुटिया। उसकी क्या फॉर्मेशन है, क्या स्ट्रक्चर होता है एक चुटिया का? इसमें बल होते हैं, एक बल नीचे से आया, फिर दूसरा बल, तीसरा बल। सो रिवर में जब एग्रेडेशन होती है तो एक स्पेशल फॉर्मेशन होती है समटाइम्स, कि वो रिवर दिखने में एक ब्रेड की तरह लगती है। तो उस टाइम पर उस रिवर को ब्रेडेड स्ट्रीम कहा जाता है। और ब्रेडेड स्ट्रीम या एग्रेडेशन कब होगी? नंबर वन, कैपेसिटी जब मैक्सिमम हो जाए। नंबर टू, जब वेलोसिटी कम हो जाए। So when the capacity is less, when the velocity is less, then aggradation happens. इसको हम deposition भी कह सकते हैं। लेकिन deposition नॉर्मली रिवर की साइड्स पे होता है और aggradation along the course of that river, मतलब रिवर के अंदर ही सेडिमेंटेशन है या मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है। सो ब्रेडेड स्ट्रीम के लिए मैंने बताया कि नंबर वन, कैपेसिटी का फुल हो जाना, रिवर मज़ीद लोड कैरी नहीं कर सकता तो वो सेटल कर देगा। सेकेंडली उसकी स्पीड कम होगी, तभी मटेरियल सेटल होगा। और थर्डली स्लोप वहाँ पर तकरीबन ना होने के बराबर या बहुत ही जेंटल स्लोप। स्लोप हल्का होता है, प्लेन एरिया होता है, तो वहाँ पर ब्रेडेड स्ट्रीम की फॉर्मेशन होती है, वहीं पर एक ग्रेडेशन होती है। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं वेलोसिटी से रिलेट करके कि यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड यू पुट सम सैंड इन इट। आप जब तक उसको स्टिर करते रहेंगे वो मिट्टी बैठेगी नहीं, और जब आप स्टिर करना छोड़ देंगे और ये ग्लास को रख देंगे 5 मिनट के लिए, सारे सेडिमेंट्स वो सब नीचे बैठ जाएंगे। सो स्ट्रीम के साथ भी यही है, स्पीड कम हो जाती है तो नीचे बैठना शुरू कर देते हैं मटेरियल। Now, how does a braided stream look like? If we can have here, there is a picture of braided stream, but I wonder where it is gone. Anyways, jab I picture, if it's there, then I'll let you know. Oh yeah, this is. इसे कहते हैं सामने ही है और शहर में ढिंडोरा। एनीवे, सो इट्स देयर, दिस इज़ अ ब्रेडेड स्ट्रीम। एंड अगर आप इसकी फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पर स्ट्रीम है, फिर डेपोजिशन है, फिर स्ट्रीम है, फिर डेपोजिशन है। सो एक ब्रेड की तरह इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज़ अ ब्रेडेड स्ट्रीम एंड इट्स इन तिब्बत प्लेटो। Okay, so this is braided stream, and flow and channel characteristics. So flow, when the river is flowing, तो उसका क्या कैरेक्टर है? फ्लो में कैरेक्टर आता है मेन स्पीड का, कि व्हाट इज़ द स्पीड, और स्पीड के लिए टर्म यूज़ की जाती है वेलोसिटी। So they are saying that when we have, like if we want to study the flow character of a river, तो जब ऊपर से देखते हैं तो it does not tell the whole story, but if we see the cross section, अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है कि एक फ्लोइंग स्ट्रीम में मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर है। तो इफ़ द स्ट्रीम इज़ सिमेट्रिकल, अगर स्ट्रीम सिमेट्रिकल है तो मैक्सिमम वेलोसिटी सेंटर में होती है। मींस ये पॉइंट है यहाँ पर विच हैज़ द मैक्सिमम इरोजन, और सो मैक्सिमम इरोजन वहीं पे होगी जहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा होगी। एंड देन हियर, इसमें थोड़ा तिरछा हो गया, तो यहाँ पर रिवर बेड थोड़ा साइड पर है। दैट मीन्स कि इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी राइट साइड पर है, और
इसमें ये कर्व जो है लेफ्ट की तरफ चला गया, दैट मीन्स कि इस स्ट्रीम की मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर है। ओके, सो ये फॉर्मेशन अब आप ऊपर से देखें अगर इसको, सो यू सी दैट, वेट, excuse me. So this river from the the top view of the river, this one, इसमें जो bends and turns आ रहे हैं ये कहलाता है sinuous movement of a stream, snake like movement। ठीक है, और स्नेक लाइक मूवमेंट, साइनुअस मूवमेंट को जब कोई स्ट्रीम साइनुअस मूवमेंट करे तो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है meandering stream, which meanders, बलदार, बल खाते हुए दरिया बहता है। So when the stream is a meandering stream, in that case हमारे पास bends आते हैं, right? So in the bended part of a stream, like this is a bend over here, जहाँ पे ये dotted line आपको नज़र आ रही है, इस dotted line में एक साइड है अंदर की तरफ और ये है बाहर की तरफ। सो अलोंग अ बेंड ऑफ अ मिएंडर, किसी भी मिएंडर के बेंड पर, या इसको मिएंडर भी कहते हैं, यानी बेंड पोर्शन इज एक्चुअली मिएंडर। सो एक मिएंडर पर एक इनर एज होता है, इनर बैंक, दरिया के किनारे को बैंक कहते हैं। सो दिस इज द इनर बैंक, दिस इज द आउटर बैंक। हमेशा वेलोसिटी अगर हम कंपेयर करें तो outer bank has higher velocity and the inner bank has lower velocity. So अब आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ये आउटर बैंक है और इसको यहाँ पे इन्होंने क्रॉस सेक्शन में दिखाया है, तो आउटर बैंक के साथ इरोजन ज़्यादा हुई हुई है रिवर बेड का। The bed is lower along the outer bank while the inner bank has higher river bed. ठीक, so it has more velocity on the outer bank, less velocity on the inner bank. जब velocity ज़्यादा होगी तो यहाँ पर इरोजन का प्रोसेस होगा आउटर बैंक पर, और इनर बैंक पर डेपोजिशन। इसीलिए यहाँ पर सैंडी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि यूँ जैसे सैंड डिपॉजिट हो गया है, राइट। इनर बैंक लो वेलोसिटी डेपोजिशन, आउटर बैंक हाई वेलोसिटी इरोजन। फिर इसी तरह यहाँ पर ये वाला पार्ट आउटर है, अब ये बाहर की तरफ का एज है। अगर आप इस कर्व में या इस meander में देखें तो दिस इज द आउटर एज over here. Let me change the pointer so that you can see. Yeah, this is the outer edge and this is the inner edge, inner bank, बैंक कहें या edge कहें। So इस inner bank पे speed कम, velocity कम, तो deposition हो रही है। outer bank पे speed ज़्यादा है तो erosion, और erosion की वजह से you see the sides in the outer side, ये steep side है river bank का। इस क्रॉस सेक्शन में देखिए ये स्टीप है यहाँ पर आउटर बैंक की तरफ, और ये इनर बैंक की तरफ जेंटल साइड है। ओके, सो द बैंक, द आउटर बैंक which is under erosion is also called as undercut bank, undercut bank erosion, कि ये वो बैंक है जो कटिंग प्रोसेस के अंदर है, यानी इरोजन हो रहा है। सो दिस इज अंडरकट बैंक इरोजन। एंड ऑन द फास्टर साइड, यानी जहाँ पर डेप्थ ज़्यादा है, दिस पार्ट, ट्रेस द मूवमेंट ऑफ माय कर्सर, ये पार्ट और ये पार्ट जो जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, और फिर ये पार्ट जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, दीज आर कॉल्ड एज पूल, द डीप पार्ट ऑफ अ meandering stream।
ये meanders, इसमें हमने असल क्या देखा है अभी, flow characteristics and the channel, right? So flow के लिए they have used the word turbulent, बहुत शोर शराबे के साथ, तेज. So turbulent in shallow streams and formation of eddies. एडीज, जब आप किसी वाटर बॉडी में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो रिपल्स बनते हैं, वो रिपल्स थोड़े स्ट्रॉन्गर हों तो वो एडीज कहलाते हैं. स्ट्रॉन्ग रिपल्स, पत्थर के पे फेंकने से बहुत हल्की लहरें बनती हैं, बट वो अगर लहरें थोड़ी नेचुरली विदाउट थ्रोइंग एनी स्टोन स्ट्रीम के साइड से टकराने की वजह से, या स्ट्रीम की स्पीड क्योंकि ज़्यादा या कम है जिसकी वजह से दैट स्ट्रीम इज़ हिटिंग अगेंस्ट द बेड, तो उसमें जो लहरें बनती हैं वो एडीज हैं. ओके, दिस इज़ द वर्ड साइनुअस व्हिच आई वाज टेलिंग, द स्नेक लाइक मूवमेंट, और उस स्ट्रीम को कहा जाता है meandering स्ट्रीम. ओके, अंडर कट बैंक को कट बैंक भी कहते हैं, अभी आपने देखा था. दिस इज द कट बैंक, अंडर कट बैंक इरोजन, वो साइड जो कि स्ट्रीम की ज़्यादा वेलोसिटी को फेस करे, एंड दैट इज स्टीप. ओके, meandering स्ट्रीम की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि आफ्टर सम टाइम्स, not in few months, or it's like after many years, a special feature is formed in a meandering stream, and that special feature is called as Oxbow Lake. Here, formation of Oxbow Lake. So what is happening? So this is the illustration which shows the formation of Oxbow Lake. Firstly, सबसे पहले meandering stream plain areas में होते हैं. Excuse me. The areas which have less slope variation. So उन एरियाज में दरिया को यहाँ वहाँ स्नेक लाइक मूवमेंट का मौका मिलता है. सो आई स्ट्रीम meanders. अब meander जब हो रहा है तो उसके जो आउटर एज हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि आउटर एज पे क्या प्रोसेस है, इरोजन का प्रोसेस है. सो लुक एट दिस पार्ट वेयर द वर्ड नेक इज रिटन. सो meander में एक पार्ट ऐसा आ जाता है जहाँ पर दो अंडरकट बैंक्स करीब आ जाते हैं. सो द रीजन बिटवीन टू अंडरकट बैंक्स इज नेम्ड एज द नेक, क्योंकि ये बारीक है, नेक जैसी नैरो ओपनिंग है. सो एट द नेक व्हाट इज हैपनिंग ऑन बोथ साइड्स, इरोजन इज टेकिंग प्लेस. ये इस आउटर एज में भी इरोजन हो रही है, इस आउटर एज में भी इरोजन हो रही है. सो हियर इन दिस वन, सेकंड वन यहाँ पे दिखा रहे हैं अंडरकट बैंक. ये दो अंडरकट बैंक हैं, यहाँ पर तो इरोजन है और यहाँ पे साथ साथ डेपोजिशन हो रही है इनर एंड पे. हियर, सो दिस डेपोजिशन, दिस इरोजन, देन इसी साइड पे भी डेपोजिशन, यहाँ पे इरोजन, और ये कंटिन्यूसली क्या होता है फिर, these parts, that neck becomes connected. नेक पर जो दो अंडरकट बैंक्स थे वो मिल गए. ओके, यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी आपको नज़र आ रही है, पॉइंट बार. सो पॉइंट बार इज़ द फीचर विच इज़ फॉर्म्ड बाय डेपोजिशन. डेपोजिशन की वजह से जो एक सैंडी एरिया या सेडिमेंटेड एरिया डेवलप होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज
पॉइंट बार। हमारे यहाँ पंजाब में बहुत रिवर्स हैं, एंड इन 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 बिटवीन द रिवर्स, क्योंकि पंजाब में हमारे यहाँ मियांडरिंग भी है, और प्रॉपर स्ट्रीम लाइफ साइकिल या प्रॉपर स्ट्रीम की जो स्टडी है दैट कैन बी डन देयर बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ रिवर्स, एंड एवरी प्रोसेस रिलेटेड टू अ स्ट्रीम इज टेकिंग प्लेस देयर, स्पेशली मियांडरिंग भी है। तो वहाँ पर दो दरियाओं के बीच में जो डिपॉजिटेड एरिया है, जहाँ पे एलुवियम डिपोजिशन होती है, या जो रिवर सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, उन एरियाज़ को बार कहा जाता है। दो दो बार्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं, मुझे हमेशा याद रहते हैं। लाइक इन पंजाब देयर इज़ अ बार, और वो कोई छोटा एरिया नहीं है, वो पूरा इलाका है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज, वन इज़ नेम्ड एज नीली बार एंड द अदर इज़ कॉल्ड एज गंजी बार। तो ये वो बार हैं, वो एरियाज़ हैं जो डेपोजिशन की वजह से बनते हैं। ओके, सो ये अंडरकट बैंक क्या हुए, आपस में मिल गए। अब थोड़ा थोड़ा टाइम और गुजरा, तो अब क्या होता है, यहाँ से स्ट्रीम स्पीड बढ़ती रहती है, और इस पार्ट के अंदर स्ट्रीम स्पीड कम होने की वजह से ये आउटर एज जो है, ये आउटर एज कट ऑफ हो जाता है। And when the outer edge is cut off from the main stream, it becomes a lake. Lake is defined as a water body surrounded by land on all sides. एक ऐसी वाटर बॉडी जिसके चारों तरफ पानी हो। अच्छा, उस वाटर बॉडी में फ्रेश वाटर होना चाहिए, मीठा पानी। सो इट बिकम्स अ लेक, और ये इस प्रोसेस से गुजर के बन रहा है, इसलिए इस लेक का नाम है ऑक्सबो लेक। So this is an actual picture of a meandering stream. Um, that's in Wyoming in United States. So आप देख सकते हैं कि प्लेन एरिया में किस तरह से स्ट्रीम सांप की तरह साइनुअस लाइक मूवमेंट है, या यूं भी कहते हैं द स्ट्रीम इज meandering. Okay, so we have done the formation of Oxbow Lake, and that would be enough for today.